Hi everyone. Okay, don't waste time. Let's start. In this class, we will discuss exercise 7.1 of coordinate geometry. The main topic is distance formula. Find the distance between given two coordinates, more than three coordinates, and also in question number 1 already I have discussed, and question number 2, find the distance between the points 0, 0 and 3, 36, 15. So 0, 0 this is the origin point, okay, and 36, 15 another point. Can you now find the distance between of 2 points? Yes, finally, because 2 points are given, A and B, x1, y1, x2 and y2, and use the formula x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square on the under root. Terms A and B discuss in section 7.2. ओके, 7.2 में एक सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लीजिए, बट फाइनली इट्स पॉसिबल. ओके, आंसर इज यस बिकॉज टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. फर्स्ट कोऑर्डिनेट ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0, 0, तो 36 and 15. तो apply the formula and find the distance between of two points. Okay, I think this is true. And question number 3, determine if the points 1, 5, 2, 3, -2 and -11 are collinear. Okay, check out collinear. What is the meaning of collinear? Collinear means when when 3 or more than 3 points lie on a straight line. तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स से भी ज़्यादा अगर एक लाइन पे बिलोंग करती है तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाता है. तो फाइनली क्या हो सकता है कि व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. तो यहाँ पर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 2, self-attain children at your home. Okay, because this is the only calculation based question, no extraordinary question. And question number 3, solution. Collinear की basic meaning है, suppose ये on a straight line any point A, B and third point is C. So A, B, C, these are coordinates and lying on a straight line. So this is the all collinear point. All collinear point. Okay. So question number 3. Points are given. Suppose let the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11. Okay, be representing the vertices, representing the vertices तो सपोज इसको हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है कोऑर्डिनेट्स दिस उसको हम लोग ए बी सी के ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ऑन अ ट्राइंगल में. तो फाइनली क्या होगा, जब ट्राइंगल शेप करेंगे तो हम लोग को ए बी सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने को मिल जाएगा. उससे ये डिसाइड होगा ये कोलिनियर पॉइंट बन सकता है या डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स. लाइक ए से बी निकाल देते हैं, बी से सी निकाल देते हैं और बी से ए निकाल देते हैं, कोई भी पॉइंट निकाल देते हैं. तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी रेस्पेक्टिवली.
finally find the distance between of two coordinates like a b. We know that two coordinates are given, then distance formula capital D is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square all the under root. So first of all, find the distance between two coordinates like a b. So here is a b c. Apply the formula. Distance between a b, x1 minus x2, 1 minus 2, 1 minus 2 whole square plus 5 minus 3 whole square all the under root. 1 minus 2 minus 1 square is 1, 5 minus 3 2 square is 4, 1 plus 4 is equal to under root 5 unit. And again same distance between BC. In BC x1 y1, in C x2 y2. सो इस तरह सामने रिफ्लेक्ट कर देंगे, फिर वैल्यू हमको नोट नहीं करनी पड़ेगी, फाइनली एक तरह से नहीं लिखना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू दिस, y1 इज इक्वल टू दिस. इसमें से फाइनली क्या है कि हमारा ऑर्डर वाइज में है, ऑर्डर वाइज में हम FC का ऑर्डिनेट BC लिया, FC का ऑर्डिनेट तो सामने दिख जाएगा, उसमें वैल्यू को पुट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. देन BC डायरेक्टली फॉर्मूला x1 माइनस x2 2 माइनस ऑलरेडी क्या है माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 whole square and ordinate 3 minus again minus plus 11 whole square all the under root. 2 plus 2 means 4 square is 16 and plus 11 3 14 square is 196 and 10 206 212 under root unit. This is the distance between of BC coordinates. And last, similarly, CA x1 y1 and x2 y2. Again FC का फोकस करिए, then ऑर्डिनेट करिए. So x1 minus x2 का होल स्क्वायर minus 2 minus 1 होल स्क्वायर प्लस minus 11 minus 5 whole square all the under root. minus 2 minus 1 minus 3 का स्क्वायर करेंगे 9 minus 11 minus 5 minus 16 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली 256 plus 9 265 यूनिट. अब देखिए हम लोग बस 3 वैल्यूज आई हैं, √5 अंडर रूट 212 अंडर रूट 265. कोई वैल्यू मैच कर रही है, कोई इक्वल डिस्टेंस पे लग रही है, कोई किसी के इक्वल है, नहीं इक्वल है. इक्वल होने की मीनिंग क्या है? सपोज कि हम अगर कंडीशंस में देखते हैं, सेंस कंडीशन से बिलोंग करते हैं, तो AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC. क्या ऐसी कंडीशन आ रही है कि AB और AC का हम सम कर दें, 212 से 5 ऐड कर दें तो 200 मैक्सिमम 17 होगा. इसको सम कर दें तो क्या इसके इक्वल होगा, इसको इसके सम के इक्वल कर दें तो क्या इसके इक्वल होगा. किसी भी कंडीशंस पे कोई वैल्यू किसी के सम के इक्वल भी नहीं आ रही है, किसी की इक्वल भी नहीं आ रही है कि ये AC का पॉइंट सम कर दें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल है तो दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रही. ओके, तो AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC एंड AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA. ये भी एक कंडीशन. और एक पेयर बना लीजिए, AB को AC से पेयर बनाया, और क्या करते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA. ओके, तो ये सारी कंडीशन क्या कर रही है कि हमारी इससे बिलोंग नहीं कर रही है.
अगर बिलोंग करती तो चांसेस बन सकते थे कोलिनियर पॉइंट बनने के। तो क्या डिसाइड हो रहा है कि दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो देयरफॉर the points, the given points are not कोलिनियर। डिटरमाइन करना था, आपने डिटरमाइन कर दिया कि बुक्स में जो पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो हमारे कोलिनियर पॉइंट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट कोलिनियर्स मीन्स 3 or more than 3 points lies on a straight line। तो ये कंडीशन नहीं बन रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। First of all, we know that conditions of isosceles triangle, condition of isosceles triangle is when two sides are equal of a triangle is called isosceles triangle। तो ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की हो जाएगी। सिंपली जितने भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसको आप अलॉट करिए कि दीज कोऑर्डिनेट्स allotted A, B, C respectively of the vertices of triangle। ओके, तो जब ट्राइंगल में आप इसके वर्टिसेस कर देंगे like first of all this is the triangle। ओके, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन सॉल्व करनी थी, मुझे तो पता नहीं कौन सा साइड इक्वल होगा, तो सिर्फ नाम नेमली मेनिंग कर दीजिए A, B, C एंड कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट 1, 5 एंड B 2, 3 एंड C -2, -11। ओके, सो अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द वर्टिसेस लाइक AB। पहले एक AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए, देन BC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करिए एंड CA का डिस्टेंस फाइंड करिए। इन तीनों में से कोई ना कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे और फाइनली आएंगे। जो दो डिस्टेंस इक्वल होंगी उससे फिर आप फाइनली बता सकते हैं कि टू साइड्स आर इक्वल इन द गिवन ट्राइंगल, सो दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो ये कंडीशन हो जाएगी और ये आइसोसेलेस है, तो आप लोग इसको बेस्ट क्वेश्चन अपना घर में सॉल्व करिए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D। ओके, इन फिगर 7.8 में आपके पास A, B, C का अलॉटमेंट है। ओके, तो ग्राफिंग के अकॉर्डिंग आप उसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे A का कोऑर्डिनेट्स है तो अकॉर्डिंग टू बुक A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस से आप एप्सिकल ले लेंगे और y एक्सिस से आप ऑर्डिनेट ले लेंगे। तो x एक्सिस से आपको 3 मिलेगा, y एक्सिस से 4 मिलेगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स 3, 4 हो जाएंगे। B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे 6, 7, C के कोऑर्डिनेट्स 9, 4 एंड D के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 6, 1। ओके, अंडरस्टूड, वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। तो सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D आर शोन इन द फिगर 7.8। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks to Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula and find which of them is correct। Champa करेक्ट है कि चमेली करेक्ट है। ओके, ये इसको करना है। तो फाइनली हमने आपको ABC के कोऑर्डिनेट्स बता दिए। A, B, C के जब कोऑर्डिनेट्स बनेंगे तो जो भी शेप बनेगा, जिसका क्वाड्रिलेटरल शेप बनेगा A, B, C, D, कुछ भी बन जाए, ठीक है ना। A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 5, hints, not complete solution, this is the hints only। ओके, तो A, B, C, D के पॉइंट्स आपके वहाँ से मिल गए। पॉइंट्स मिलने के बाद आपने जब पॉइंट्स अलॉट कर दिया
कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फाइनली आप अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी निकालिए, देन बी सी सी डी एंड लास्ट डी ए। तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, तो क्वाड्रिलेटरल शेप में आपके पास ये नॉट डिफाइंड है कि पैरेललोग्राम शेप हो सकता है, कि रोम्बस हो सकता है, कि स्क्वायर हो सकता है, कि रेक्टेंगल हो सकता है। एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शन में क्या है कि फाइनली ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के डिस्टेंस फॉर्मूले से आप उसकी लेंथ निकालिए। इसकी सपोज की सारी लेंथ इक्वल हो जाती है तो आपके माइंड में आएगा कि हाँ दिस इज स्क्वायर, बट रोम्बस की भी तो कंडीशन होती है कि रोम्बस के भी ऑल साइड आर इक्वल। देन इस डाउट को फिर क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का डायगोनल निकाल देंगे, ए सी एंड बी डी के बीच का डायगोनल निकाल देंगे। फिर ए और सी के कोऑर्डिनेट को लेकर के आप ए सी लेंथ फाइंड कर देंगे, फिर बी और डी के कोऑर्डिनेट्स को लेकर आप बी डी लेंथ फाइंड कर देंगे। अगर ये दो लेंथ भी इक्वल आ गई तो फाइनली दिस इज स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट इन द स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल आर आल्सो equal, but I am sure in this question Champa is correct, in this question Champa is correct। तो आप सॉल्व करेंगे, डायगोनल भी आपके इक्वल नहीं आएगी तब आप किस कंडीशन में चले जाओगे, रोम्बस की कंडीशन में चले जाओगे। रोम्बस के ऑल साइड इक्वल होते हैं बट डायगोनल आर डिफरेंट। ओके चिल्ड्रन, सो क्वेश्चन नंबर 5 also attempt yourself at your home, okay, and after that question number 6 very interesting, name the type of quadrilateral form if any by the following points and give reason for your answer। तो 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 4 कोऑर्डिनेट्स में आप फिर वही प्रोसेस फॉलो करिए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए की लेंथ निकालिए। फिर पर्टिकुलर डाउट निकलता है, जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, तो अगर आपके पास ए बी उसके अपोजिट साइड के इक्वल आता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आपको डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 5 तक आप अटेंड करिए, बट इन द नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 okay I will be discuss, okay, so first of all attempt yourself at your home question number 1 to 5 and question number this Champa question, attempt yourself। Thank you so much children।